morning students. In today's class, we will study about staffing, its meaning, definition and characteristics. In previous classes, we have already studied about the first two steps of management process, that is planning and organizing. Staffing is the third step of management process. Hello students, as we know that management is a complete process which include various steps. We have already studied the first two steps of management process, that is we have studied about planning as well as we have studied about organizing. Now the third step that comes after planning and organizing is staffing. Staffing is a process in which we appoint the employees as per our requirements. So, our next chapter is about staffing. In this chapter, we shall study about the meaning and definition of staffing. We will study the characteristics of staffing, its importance, and we will also study that staffing is a part of human resource management. Staffing process, we will study staffing process. Staffing process includes recruitment as well as selection. So we will study about the recruitment and selection processes in detail. Then we will study about training and development. We will study the various methods of training, and we will also study the distinction between training and development. Now, starting with what is staffing? Staffing is a function by which the managers build an organization through the recruitment, selection and development of individuals as capable employees. तो स्टाफिंग क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू मैनेजर्स जो है अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करते हैं थ्रू रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका रिक्रूटमेंट करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, उनका डेवलपमेंट करते हैं और उनको हमारी जो टारगेट्स हैं उनको फुलफ़िल करने में हेल्प करें, इस तरह से उनका डेवलपमेंट करते हैं. Now, what is the meaning of staffing? So, in general, we can say that staffing is finding capable and dedicated personnel and using their talents for the satisfaction of our goals. After deciding what is to be done, we decide how it is to be done. Then it is decided that by whom it is to be done. जब तक हम पहले ये डिसाइड करते हैं कि हमें करना क्या है, वो प्लानिंग में आ जाता है. हाउ इट इज़ टू बी डन, जब ये डिसाइड करते हैं वो ऑर्गेनाइजिंग में आ जाता है. वेयर एज जब हम ये डिसाइड करते हैं कि उस काम को करेगा कौन, बाय हुम इज इट टू बी डन, तो वो प्रोसेस आ जाता है स्टाफिंग में. नाउ कमिंग टू द डेफिनेशन ऑफ स्टाफिंग. स्टाफिंग हैज़ बीन डिफाइंड बाय वेरियस ऑथर्स इन वेरियस वेज. यहाँ पे हमारे को बहुत सारी डेफिनेशंस दे रखी हैं. I will explain you the definition of Dale Yodkar. Staffing is the executive function which involves recruitment, selection, compensating, training, promotion and retirement of the subordinate and managers. यानी कि स्टाफिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर कि हम रिक्रूटमेंट कैसे करना है, सिलेक्शन कैसे करना है, उनको कॉम्पनसेशन यानी उनको कितनी सैलरी देनी है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें डिसाइड करते हैं. उनका कैसे ट्रेनिंग करना है, उनको कैसे प्रमोट करना है और उनका रिटायरमेंट कब और कैसे किया जाना है, ये सारा प्रोसेस स्टाफिंग में इंक्लूडेड होता है. अनदर डेफिनेशन given here is of George R. Terry. According to him, staffing is concerned with getting and maintaining satisfactory manpower. This is the simplest definition which you can have. यानी डेफिनेशन में कहा गया है कि स्टाफिंग इज कंसर्न विद मेंटेनिंग एंड गेटिंग एंड मेंटेनिंग सेटिस्फैक्ट्री मैन पावर, यानी ऐसे मैन पावर को हमको हमारी ऑर्गेनाइजेशन में लाना और उनको मेंटेन करना जो कि हमारे गोल्स को सेटिस्फाई करने में हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हों. नेक्स्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर इज कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ स्टाफिंग. तो स्टाफिंग की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? First characteristics of staffing is determination of different types of personnel.
यानी कि हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो पर्सन्स हैं हमारे यहाँ रिक्वायर्ड है, हम पहले डिटरमाइन करेंगे किस तरह के लोग हमें रिक्वायर्ड हैं। नेक्स्ट, डिटरमाइनिंग द पीरियड फॉर विच द पीपल आर रिक्वायर्ड। स्टाफिंग के थ्रू ही हम डिटरमाइन करेंगे किस तरह के लोग रिक्वायर्ड हैं और कितने समय के लिए हमें वो पर्सन्स रिक्वायर्ड हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज़ इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, क्योंकि जॉब्स जो हैं डेली हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट होती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, चेंजेस इन रिक्वायरमेंट्स और प्रमोशन ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़, बहुत सारे रीजंस की वजह से जो स्टाफिंग है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस कहलाता है। नेक्स्ट इज प्रेजेंटिंग इन्वेंट्री ऑफ एग्जिस्टिंग नंबर एंड टाइप ऑफ स्टाफ एम्प्लॉय, यानी कि नेक्स्ट फंक्शन हमारा जो स्टाफिंग का है वो ये है कि वो इन्वेंट्री प्रेजेंट करता है, दैट इज़ वो बताता है कि हमारे पास एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने हैं, है ना, और कितने हमें और रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज इट इज़ एडवांटेजेस टू ऑल, बिकॉज क्योंकि टॉप एडमिनिस्ट्रेशन को पता रहता है कि मुझे कितने वर्कर्स चाहिए और लोअर एडमिनिस्ट्रेशन को ये पता रहता है कि उनका वर्क बर्डन अब कम होने वाला है, ठीक है। तो स्टाफिंग के प्रोसेस से जो है वो सभी के लिए बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस रहता है। It does not include only people involved but also the working conditions and relationships in which they work. इसमें सभी चीज़ें इन्वॉल्व रहती हैं, सिर्फ पीपल नहीं बल्कि उनकी वर्किंग कंडीशंस, वो लोगों के साथ उनके जो कलीग्स हैं उनके साथ उनका क्या रिलेशनशिप्स है, क्या होगा, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व रहती हैं। इट इज़ रिलेटेड टू ह्यूमन एस्पेक्ट, क्योंकि इसमें रिक्रूटमेंट के बाद सिलेक्शन, फिर प्रमोशन, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट भी किया जाता है। तो ह्यूमन एस्पेक्ट है क्योंकि इसमें जो भी पर्सन ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है उसका ट्रेनिंग होना, उसकी स्किल्स में इम्प्रूवमेंट होना, उसका डेवलपमेंट होना यानी उसका ओवरऑल डेवलपमेंट होना, उसका प्रमोशन होना यानी उसके लाइफस्टाइल में चेंजेस आना, तो इन सब चीज़ों से जो ह्यूमन एस्पेक्ट है वो रिलेटेड रहता है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। जो सिलेक्शन है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन को पर्सनल हर स्टेज ऑफ वर्क पे रिक्वायर्ड रहते हैं और एफिशिएंट पर्सन्स जो हैं वो स्टाफिंग के प्रोसेस से ही हम अपॉइंट कर सकते हैं। स्टाफिंग इज़ एसेंशियल इन बोथ ओल्ड एंड न्यू एंड एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, यानी हर ऑर्गेनाइजेशन चाहे वो पुरानी हो चाहे वो नई हो, सभी ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफिंग होना एसेंशियल है। द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग टेक्स प्लेस आफ्टर प्लानिंग एंड सिलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑब्वियसली जब तक हम पहली 2 सीढ़ियाँ नहीं चढ़ेंगे तो हम तीसरी सीढ़ी तो चढ़ नहीं सकते, तो पहले 2 स्टेप्स हमको कवर करने होते हैं, देन ओनली वी कैन कम टू द थर्ड स्टेप। तो प्लानिंग जो है प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग के बाद ही सिलेक्शन या स्टाफिंग का प्रोसेस किया जाता है। So in today's class we have learned about meaning and definition of staffing, as well as we have learned its functions, characteristics and nature.